students, let's start inverse of a function. Now what is how you will get the inverse of a function? If there are two functions f and g, definition, if a function f from x to y be 1 1 on to function, जो फंक्शन है वो क्या है, 1 1 भी है और on to भी है, यानी कि ये x और ये y फंक्शन f is from x to y. It's 1 1 and on to means every element of x is associated with unique element of y. ठीक है, and it is also on to. It is 1 1. Every element is associated with different element of y, and every element of y have their pre-image. Pre-image है तो क्या बोलेंगे? It is 1 1 and on to means bisection function है. f क्या है? f is a bisection function. If f from x to y be 1 1 and on to function, then function f inverse from y to x, then a function f inverse from y to x, which associated each element of y, y का हर एक एलिमेंट की कोई न कोई क्या है, यूनिक. Every element of y is associated with unique element of x. y का हर एक एलिमेंट f इनवर्स x में इसका हर एक एलिमेंट इससे डिफरेंटली एसोसिएटेड है. Unique element of x belongs to x such that fx is equal to y. Such that fx is equal to y is called inverse of function x to y. तो भाई अगर मान लो f 1 1 and on to function है, 1 1 and on to function है, it means every element of x is associated with every means different element of y, and it is 1 on to also. Therefore y, the function that is inverse of f from y to x, that every element of y have different value for different is associated with different element of x, then f inverse x is the inverse of f inverse x is the inverse of function f x tends to y. Is it clear? अब इसके साथ एक और हम थ्योरम करते हैं. If f and g, if f is a function from x to y, if f is a function from x to y and g is a function, इसको इनवर्स को हम इनवर्स नहीं बोल रहे, यहाँ पे फंक्शन g बोलते हैं. फंक्शन f is from x to y and function g is from y to x, such that GOF is identity, GOF and FOG both are identity function. GOF in the sense GOF of x क्या है, फंक्शन x के साथ में g of fx. If this is equal to x की वैल्यू निकाल रहे थे, if this is equal to x, this is equal to x means GOF of x, फंक्शन f का एलिमेंट है x, तो क्या आ जाएगा, GOF is identity function और this is equal to I x, यानी कि x का कोई भी एलिमेंट ले ले, GOF जो आएगा रिजल्ट वो वही एलिमेंट आ जाएगा. ठीक है. अब दूसरी बात करते हैं FOG. FOG is also identity function. FOG is also identity function. अब FOG तो क्या लिखें, f of gy, this is equal to y. f of, देखिए FOG पहले g फंक्शन है, फंक्शन g क्या है, from y to x. ठीक है, तो पहले g है तो वैल्यू किसकी लेंगे हम, एलिमेंट फ्रॉम y. तो एलिमेंट फ्रॉम y, ये क्या हो जाएगा, FOG is equal to y. तो ये आइडेंटिटी फंक्शन हो गया. और यू कैन से y is any element from this y set. ठीक है भाई. तो आप क्या बोलेंगे, if GOF is ix and FOG is, इसमें पहला था f वाला तो इसलिए x, और GOF में किसका था y, लेते हैं y from any element from set y,
तो गोफ y इज इक्वल टू y और आइडेंटिटी एलिमेंट एनी एलिमेंट फ्रॉम y, जिसकी वैल्यू निकालेंगे वही वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो इन दिस केस अगर ऐसा होता है देन f एंड g आर बाइसेक्शन फंक्शन, f और g क्या होंगे, दोनों बाइसेक्शन फंक्शन होंगे एंड g इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ f, g is equal to inverse of f. Is it clear? Now let's come to the exercise. Now let's see the first question of exercise 1.5. Let S is a set having element 1, 2, 3. Then determine whether the function from S to S is defined below have inverse. आपको ये बताना है whether जो ये define कर रखे हैं whether the function from S to S defined below have inverse. Inverse है क्या इनका? If there is inverse then find inverse. Okay. अब इसमें देखते हैं, सबसे पहले देखिए function is from S to S. हम 1 2 3 1 2 3 अब देखिए 1 is associated to 2, 2 is associated to 1 and 3 is associated to 1. अब हमने क्या देखा था कि फंक्शन विल बी इनवर्स इफ दैट फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन 2. अगर वो फंक्शन 1 1 और ऑन 2 मींस बाइसेक्शन नहीं है, इन दैट केस यू विल से दैट फंक्शन इज नॉट इनवर्स, इनवर्स इज नॉट पॉसिबल. तो इसमें देखिए 1 इज एसोसिएटेड टू 2, 2 इज एसोसिएटेड टू 1, 3 इज आल्सो एसोसिएटेड टू 1. तो इज इट 1 1? दो एलिमेंट हैं डोमेन के which have the same image. सेम इमेज है, 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है तो इनवर्स नहीं है. दूसरा केस, देयर इज एलिमेंट 3 इन कोडोमेन व्हिच डोंट हैव एनी प्रीवियस. तो ये ऑन टू भी नहीं हुआ क्योंकि कोडोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई प्रीवियस नहीं है, तो ये ऑन टू भी नहीं हुआ, ये 1 1 भी नहीं हुआ, ऑन टू भी नहीं हुआ, तो इट्स इनवर्स इज नॉट पॉसिबल. ठीक है. अब देखिए इसमें देखिए अब क्या है, F1 किससे एसोसिएट है? 2 से. F2 किससे एसोसिएट है? 1 से. F3 किससे एसोसिएट है? 1 से. ठीक है. तो देयरफॉर 2 and 3 from domain have same image है भाई. Therefore it is not 1 1 function. It is not 1 1 function. ठीक है भाई, ये ऑन टू नहीं है, ये प्रूव करने की जरूरत नहीं. अगर आपने ये भी कह दिया ये 1 1 फंक्शन नहीं है तो इवन देन यू कैन से इनवर्स, देयर इज नो इनवर्स टू दिस फंक्शन. तो लिखेंगे इनवर्स, रीजन भी दे दो, इनवर्स फंक्शन इज 1 1 and 1 1 and on 2. इनवर्स फंक्शन 1 1 और on 2 होता है. अब आपने बता दिया जो ये फंक्शन f at is not 1 1, therefore function f don't have inverse. ठीक है, इनवर्स उसका नहीं है या इनवर्स पॉसिबल नहीं है. ठीक. अब सेकंड देखते हैं, इफ फंक्शन इज दिस वन 1 3 3 2 2 1. देखिए भाई 1 2 3 1 2 3. 1 is associated to 3, 3 is associated to 2, 2 is associated to 1. तो सभी के डिफरेंट इमेज हैं और ये ऑन टू भी है. तो ये 1 1 भी है क्योंकि 1 की 3 3 की 2 2 की 1. ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है. Therefore it is bisection function है तो इसका इनवर्स पॉसिबल है. तो लिखेंगे it has f1 क्या है? f1 is 3, f3 कितना है? 2 और f2 कितना है? 1. Therefore each element of domain have different image. So it is 1 1, it is 1 1 function.
कैसा फंक्शन हो गया ये? वन वन फंक्शन हो गया। और उसके बाद क्या बोलेंगे? एवरी एलिमेंट ऑफ y हैज डिफरेंट प्रीमिस। या एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन have pre-image, therefore it is onto function। ये वन वन भी हो गया, onto भी हो गया, therefore function f is bisection। ठीक है भाई, ये फंक्शन f is bisection हो गया, तो its इनवर्स इज पॉसिबल। इनवर्स पॉसिबल है भाई, क्योंकि ये बाइसेक्शन फंक्शन, तो इसका इनवर्स क्या होगा? f क्या था, ये इनवर्स क्या होगा? इंटरचेंज हो जाएगी। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा? 3 1,3 था, तो क्या हो जाएगा? 3, 1 2, 3 2, 3 3, 2 2, 1 और ये 2, 1 है, तो क्या हो जाएगा? 1, 2। Is it clear? This is how we will find the inverse. Let's see question number 3. What is it? Find the inverse of the function f from real to real, defined as fx is equal to 1 minus 9x। 1 minus 9x। ठीक है, तो क्या है? If function f is from real to real, defined as fx is equal to 1 minus 9x। ठीक है, तो हमें क्या सबसे पहले क्या प्रूव करना है? 1। सबसे पहले क्या प्रूव करना है भाई? जो ये फंक्शन है ये 1 1 है, फिर उसके बाद क्या प्रूव करेंगे? ये फंक्शन onto है। If the function is 1 1 and onto, it means if it is bisection function, then we will say that inverse is possible and we will find the inverse। First of all we will see whether it is 1 1 function or no। तो इसमें क्या करेंगे? If x1, x2 belongs to real function, x1, x2 belongs to real, then if fx1 is equal to fx2, if this implies that if fx1 is equal to fx2 implies that x1 is equal to x2, then it is 1 1 function। This implies that fx1 x क्या पुट करेंगे इसमें? 1 minus 9 x1 is equal to fx2 1 minus 9 x2। okay, this implies that दोनों तरफ से 1 1 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? minus 9x1 is equal to minus 9x2। माइनस से माइनस, 9 से 9, this implies that x1 is equal to x2। if fx1 is equal to x2 implies that x1 is equal to x2, then function is onto function is 1 1 फंक्शन 1 1 हो गया। अब उसके बाद onto के लिए सेकंड पॉइंट क्या है? 4 onto। अब 4 onto है, तो हम क्या करेंगे? लेट्स टेक एनी आर्बिट्ररी y as any arbitrary element from codomain। तो fx is equal to y is equal to this one। तो let y belongs to R codomain। y या let y be any arbitrary element from codomain। ठीक है, कोडोमेन से हमने कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लिया। ठीक है, देन fx is equal to 1 minus 9x, that is equal to y। take 1 to other side, this implies that minus 9x is equal to y minus 1, or this implies that minus x is equal to y minus 1 by minus 9। तो क्या करेंगे? माइनस से नीचे माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? माइनस ए प्लस 1 माइनस वाई इज इक्वल टू
9। ठीक है, तो क्या हुआ भाई, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ y फ्रॉम कोडोमेन देयर बिलोंग्स टू x फ्रॉम डोमेन सच दैट x इज इक्वल टू 1 माइनस y बाय 9। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, फॉर every y belongs to codomain there exists x which is equal to 1 minus y by 9। 1 minus y की जो वैल्यू होगी इसमें पुट कर देंगे, you will get previous। okay, such that for every y belongs to codomain there exists x is equal to 1 minus y by 9 such that fx is equal to, fx क्या है, x कितना है ये, तो f 1 minus y by 9 is equal to fx। what is fx? fx is this one, x की जगह पे x यहाँ पे है, तो f of this one तो क्या होगा, 1 minus 9 into 1 minus y by 9। कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, 1 minus 1 minus 1 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का y, कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू y। तो क्या हो गया, fx इज इक्वल टू y। तो क्या कहेंगे, फॉर एवरी therefore for each y, or you can say therefore it is onto function because for every element of y there exists premise in this one। ठीक है, हर एक की प्रीमिस होती है, therefore it is onto function। ये 1 भी होगा, onto हो गया, तो क्या लिखेंगे, hence fx या function is bisection and its inverse is there। इसका इन्वर्स होगा भाई, इसका इन्वर्स होगा, और इसका इन्वर्स क्या है, इसका इन्वर्स क्या होगा, लेट fx is equal to y, this implies that f को उधर ले जाओ, x is equal to f inverse y, f is equal to, ये f उधर चला जाएगा, f inverse y। ठीक है भाई, तो x क्या आ गया, therefore x is equal to f inverse y। what is x? so f inverse y is equal to, what is x? x क्या था भाई, this one is x। तो f inverse y is equal to 1 minus y by 9। तो क्या होगा, f inverse x is equal to y, fx is equal to y, ये उधर चला गया, f inverse x is equal to f inverse y, और x क्या था, x is 1 minus y by 9। अब इसको जनरलाइज कर देंगे, क्या कर देंगे, जनरलाइज कर देंगे, by generalizing it therefore f inverse x is equal to 1 minus x by 9। कोई ये हमने y तो आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था, कोई भी पॉइंट ले लो जनरल, तो हम उसको x मान लेते हैं, let f inverse x is equal to 1 minus x by 9। is it clear? this is the inverse of this function। is it clear? now let's proceed to the next question। let's come to 7th question, and the question which we have left they are related to same, उनको 1 1 prove करना है, on to prove करना है, that is bisection function, and after that you can find the inverse। ठीक है, तो ये इस तरह के 1 1 on to prove करना, ये आप प्रीवियस एक्सरसाइज में कर चुके हैं, तो सेम है, इसलिए हम एक आध ही उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। so without taking much time let's come to 7th question। let function f from real minus 3 by 5 to real minus 2 by 5 be a function defined as fx is this one, find the inverse। अब इसका डोमेन देखिए भाई, डोमेन क्या है, रियल -3 by 5, इसको -3 by 5 रखते हैं, 5 से 5 -3 + 3 0,
एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। तो डिफाइंड नहीं होता, इसलिए पहले ही कह दिया भाई डोमेन इज रियल माइनस 3/5, ठीक है। और जो रेज है, जो कोडोमेन है, क्या आता है, रियल -2/5। ये क्यों दे रखा है, वी विल सी आफ्टर दैट, ठीक है। उसके बाद ये बताना है वी हैव टू फाइंड द इनवर्स। फाइंड इनवर्स करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव इट 1 1, आफ्टर दैट वी विल प्रूव इट ऑन 2 एंड देन वी विल फाइंड द इनवर्स। फंक्शन लिख लेंगे। फंक्शन क्या है, if f from real minus 3/5 to real minus 2/5 defined as fx is equal to 2x by 5x plus 3. First of all we will prove it 1 1 function, ठीक है। now let x1 comma x2, let x1 comma x2 belongs to real minus 3/5, ठीक है। डोमेन, ये डोमेन को बिलोंग करते हैं। एंड इफ fx1 is equal to fx2, if this implies that x1 is equal to x2, then we will say that it is 1 1 function। तो fx1 कितना होगा, 2x1 by 5x1 plus में 3, this is equal to 2x2 by 5x2 plus में 3। सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, this implies that 2x1 into 5x2 plus में 3। now ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 into 5 10x1 x2 प्लस में 2x1 into 3 प्लस में 6x1। अब this is equal to, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x2 into 5x1 तो कितना हो जाएगा 10x1 x2 प्लस में 2x2 into 3 कितना हो जाएगा 6x2, ठीक है। 10x1 x2 is equal to, ये कैंसिल हो गया, this implies that 6x1 is equal to 6x2, 6 से 6 कैंसिल, this implies that x1 is equal to x2। अब देखिए if fx1 is equal to fx2 implies that x1 is equal to x2, then we will say that this function is 1 1 function। therefore function is 1 1 function, ठीक है भाई। ये 1 1 फंक्शन हो गया। अब हमें इसको ऑन टू प्रूव करना है, तो इसमें क्या मानेंगे, let y be any arbitrary element such that y belongs to codomain, y belongs to real minus 2/5, that is कोडोमेन, ठीक है भाई, इसको बिलोंग करता है वो। तो हम क्या करेंगे, fx is equal to this is equal to y, therefore fx is equal to 2x by 5x plus 3, this is equal to y। now get the value of x in terms of y, इसको कर ले जाए। this implies that इक्वेशन के आगे इक्वेशन implies that का साइन, ये y के साथ मल्टीप्लाई, तो 2x is equal to 5xy प्लस में 3y। इनमें से क्या है, y कॉमन ले, क्या ले लो, y कॉमन, कितना हो जाएगा, सॉरी हमें वैल्यू निकालनी है x की इन टर्म्स ऑफ y, इसको इधर ले आओ, कितना होगा, दिस इंप्लाइज दैट 2x minus 5xy is equal to 3y। take x common from this one, this implies that कितना, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है y के फॉर्म में। x कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, 2 minus 5y that is equal to 3y, ये उधर जाके डिवाइड होगा, this implies that x is equal to 3y by 2 minus 5y। देखिए भाई कोडोमेन में क्या दे रखा है,
रियल माइनस 2/5, क्योंकि यहाँ 2/5 हो जाता है, 5 से 5 कैंसिल, ये 2 बच गया, 2 - 2 0, नॉट डिफाइंड आ जाता है। इसलिए जो ये y है कोडोमेन है रियल माइनस 2/5। ठीक है भाई, y इज दिस वन। तो क्या लिखेंगे, फॉर एवरी, देयरफॉर फॉर एवरी y belongs to codomain there exists x belongs to, या x is equal to 3y by 2 minus 5y. For every y of codomain there exists x is equal to this one in domain. यानी कि हर एक कोडोमेन वाले की जो इमेज है, प्री इमेज है, वो ये होगी इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, तो क्या लिखेंगे भाई, फॉर एवरी y belongs to codomain there exists x, this one in domain, such that fx is equal to, what is x, ये fx, x किस जगह ये पुट कर दो, कितना आ गया, f 3y by 2 minus 5y, and that is equal to कितना, x की जगह पे f of this one, fx is this one, तो x की जगह पे ये पुट कर देंगे, कितना हो गया, that is 2 into x कितना है, 3y by 2 minus 5y डिवाइड by 5 into 3y by 2 minus 5y प्लस में 3। ठीक है, this is equal to 2 into 3 कितना होगा, 6y by 2 minus 5y, नीचे एलसीएम कितना आ गया, 2 minus 5y, और ये कितना, 5 3 जा 15y प्लस में बाय 1 था, एलसीएम ये ले लिया, 1 से डिवाइड करके ये दिस इनटू प्लस 3, तो प्लस 3 into 2 6, और प्लस 3 into माइनस 15y, ये दिस ये नीचे आ जाएगा ये ऊपर, तो ये कैंसिल हो गया डिनोमिनेटर वाला पार्ट, दैट इज 6y बाय कितना, 15y माइनस 15y कितना हो गया, 6 से 6 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू y। ठीक है, fx इज इक्वल टू y। तो क्या कहेंगे, therefore for every y belongs to codomain there exists its, या there is its pre-image, इसकी pre-image है, हर एक y कोडोमेन को है, तो there exists its pre-image, hence f is onto function। f क्या हो गया भाई, onto, f जो फंक्शन f है वो 1 भी है और वो onto भी है, therefore function is bisection and its inverse exists, इसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इनवर्स के लिए let fx is equal to y, fx is equal to y, this implies that x is equal to f inverse y, and what is x is this one, therefore कितना x के लिए क्या पुट करें, 3y by 2 minus 5y is equal to f inverse y, therefore inverse of f is f inverse कहां से कहां तक, f inverse from real to real minus 2/5 to real minus 3/5, defined as f inverse x is equal to, x में कन्वर्ट कर दो, जनरल पॉइंट लिख लो, ये y था हमने जनरल लिख दिया, अब इसका f इनवर्स क्या है, from this to this and f inverse x is equal to
3x by 2 minus 5x. Is it clear? सिंपल है, कुछ नहीं, आपने इनवर्स बता दिया, यही आपका ये ओन टू बता दिया, वही आपका इनवर्स भी सोल्व हो जाता है। इनवर्स भी हमें वैसे ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या है, आपने बता दिया fx is equal to y, और फॉर एवरी y इन कोडोमेन देयर एग्जिस्ट x, दिस वन। तो यही तो है भाई, f from x to y, और f इनवर्स क्या होगा, from y to x, यानी कि y हर एक y की वैल्यू किसमें, x में, हर एक y की कोई प्रीमेज है x, एंड दैट इज दिस वन। तो ये क्या होगा, इनवर्स होगा। इज इट क्लियर? Ninth question. Let f is a function from natural number to real. Be a function defined as fx is equal to this one. Fx is equal to this one. Show that function f from natural number to raise of f. Raise of f is invertible and find the inverse. क्योंकि real ये natural number to real, तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट ऐसे बचेंगे जिसकी कोई प्रीमेज नहीं होगी, इसलिए इन्होंने क्या ले लिया, जो फंक्शन ले लिया, फंक्शन क्या ले लिया, f फ्रॉम नेचुरल टू रेज ऑफ f, नेचुरल टू रेज ऑफ f, यानी कि जो इनसे रिलेटेड है। अब रेंज ऑफ f सिर्फ जो रिलेटेड है उन्हीं की बात करेंगे हम, उनकी कोई प्रीमेज है, तो ये इनवर्स है। अब इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो अगर अपने पास f और g दो फंक्शन है, इफ वी हैव f एंड g टू फंक्शन, और ये इधर वाला क्या है, g, if gof is equal to ix, int एलिमेंट मींस कोई gof of x is equal to x, यानी कि डोमेन से कोई एलिमेंट ले ले और वही आ जाए, and 4 is I to y means कोडोमेन, मींस इसमें कोडोमेन क्या है, रेंज से एसोसिएट कर रहे हैं हम सिर्फ, ठीक है, रेंज से कोई रेंज ऑफ दिस f की जो रेंज है उसका वही आ जाता है, int एलिमेंट है, तो हम क्या कहेंगे, therefore f and g are बाइजेक्शन फंक्शन। f और g क्या है, दोनों बाइजेक्शन होंगे, एंड g इज इक्वल टू f इनवर्स, जो g होगा वो f का क्या होगा, इनवर्स होगा, ठीक है। ये वाला हम प्रॉपर्टीज में यूज करेंगे। फंक्शन क्या है भाई, fx इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस में 15, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस में 15। तो हम क्या लें, जो फंक्शन है, फंक्शन f है फ्रॉम क्या है, n to y ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, फंक्शन f to n to y, वेयर y क्या है, y is रेंज ऑफ f, रेंज की जो f है उसको हम, जो सिर्फ जो रेंज है उसको हम y एक सेट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और g क्या, ये f क्या है, नेचुरल नंबर टू y, f नेचुरल नंबर टू y क्या है, रेंज ऑफ f। इज इट क्लियर? अब जो ये हम कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट y से ले लेते हैं, स्मॉल y, लेट y belongs to y that is range of f, रेंज ऑफ f में से y है भाई, लेट y be any arbitrary element, ठीक है, फ्रॉम रेंज ऑफ f से कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट है, तो क्या लिखें, fx is equal to 4x square plus 12x plus 15 is equal to y। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है इन फॉर्म ऑफ y, x की वैल्यू इन फॉर्म ऑफ y। सबसे पहले इसको स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, इसको क्या लिखे भाई, दिस इंप्लाइज दैट 4 क्या है, 2 का स्क्वायर, तो क्या लिखे 2x square
प्लस में इसको ब्रेकअप कर दो भाई, 2 इंटू 12x को 2 इंटू 2x इंटू 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, हमें 12 है x तो ये ले लिया, 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3 रख लिया, प्लस में 15 को ब्रेकअप कीजिए भाई। अब देखते हैं स्क्वायर कंप्लीट करना है, 2x का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 2x इंटू 3, तो अगर प्लस में 3 का स्क्वायर आ जाए, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 15 को ब्रेकअप कर दिया, 9 प्लस में 6 इज इक्वल टू 1। इज इट क्लियर और नॉट? हमने क्या इसको 15 को क्या लिख लिया 9 प्लस में 6, और ये 12x को क्या लिख दिया 2 इंटू 2x इंटू 3, तो 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3 प्लस में 3 का स्क्वायर, दिस इज 2x प्लस में 3 का होल स्क्वायर, एंड take 6 to the other side, that is y minus 6, that is y minus 6। कोई शक इसमें? now taking square root on both sides, taking square root on both sides, तो 2x plus में 3 is equal to square root of y minus 6, take 3 to other side, this implies that 2x is equal to y minus 6, और ये minus 3, और take 2 other side, this implies that x is equal to y minus 6 minus 3 by 2, fx this is equal to y, then x is equal to this one। तो इस फंक्शन को हम क्या मान ले, फंक्शन g मान ले, क्या मान ले, फंक्शन g। now let function g such that कहां से कहां तक, range of f g के माना हमने range of f to n, तो फंक्शन g such that y to n, where y क्या है, y is range of f, ठीक है। फंक्शन g को क्या मान लिया, from y to n, और y क्या है, range of f, defined as fy, defined as fy is equal to y minus 6 का स्क्वायर रूट minus 3 by 2, ये क्या है फंक्शन g मान लिया, सॉरी fy is gy, this is gy is this one। अब हमें क्या प्रूव करना है, नेक्स्ट हमें ये प्रूव करना है गोफ एंड फोर्थ दे आर आइडेंटिटी फंक्शन, तो आइडेंटिटी फंक्शन है तो दोनों क्या हो जाएंगे, बाइसेक्शन फंक्शन हो जाएंगे, और एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्स, ठीक है। तो अभी हमें क्या प्रूव करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, गोफ x, तो दिस इज फाइंड गोफ x g of fx। what is fx? fx is this one, no, this is g of fx कितना है भाई, 4x square प्लस में 12x प्लस में 15, that is g of this one, जहां भी gy is this one, जहां भी y है 4x वो पुट कर दो, ठीक है। तो क्या है gy, इसमें जहां भी y है इस फंक्शन में क्या है, y minus 6 कितना, 4x square प्लस में 12x प्लस 15, और इसमें minus 6 और -3 डिवाइड बाय 2, ठीक है। आपने gy में, क्योंकि हमें क्या पता है x is this one, तो हमें, और x क्या माना हमने, gy is this one, ठीक है भाई। अब g of this one, तो हमने जो भी ये वैल्यू है यहाँ y की जगह पुट कर देंगे, वो पुट कर दिया, इसको सिंपलीफाई कर लो, ये क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। 15 minus 6 4x square प्लस में 12x प्लस में 15 minus 6 कितना आ गया, 9 minus 3 डिवाइड बाय 2। व्हाट इज दिस वन, ये क्या है भाई, 2x square प्लस 3 square प्लस में 2 into 2x into 3, तो ये क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 2x प्लस में 3 का होल स्क्वायर -3 by 2, कट गया भाई, कितना आ गया, 2x प्लस 3, और ये 2x 3 को बच गया, और ये -3 by 2, 3 से 3 कितना आ गया भाई, 2x by 2 कट गया, दैट इज इक्वल टू x।
तो क्या आ गया, गोफ ऑफ x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल, for या for each लिख लो, for each x belongs to n. Similarly we will find for if fog of y, f g क्या है, फंक्शन क्या है gy, फंक्शन क्या है gy, fog में हम क्या लेंगे y, that is equal to f of gy, ठीक है भाई। अब ये भी fog y क्या आना चाहिए, y आना चाहिए, fog x तो gof x is equal to x और fog y is equal to y आ जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बाइजेक्शन फंक्शन हो जाएंगे f और g, और एक दूसरे के इनवर्स, ठीक है ना। f of gy पुट कीजिए, व्हाट इज gy is under root y minus 6 minus 3 by 2, that is equal to f of this one, f of fx में जहां भी x है ये पुट कर दीजिए, fx is equal to this one, so f this is equal to जहां भी x है तो क्या आ गया 4 और x स्क्वायर इसका स्क्वायर यानी कि रूट y minus 6 minus 3 by 2 का स्क्वायर और प्लस में 12 इंटू ये रूट y minus 6 minus 3 by 2 प्लस में 50, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे इसको आगे, अब इसका होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर है 4 इंटू नीचे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और y माइनस 6 का स्क्वायर रूट और माइनस 3 इसका होल स्क्वायर तो कितना होगा, इसका स्क्वायर y माइनस 6 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर कितना आ जाएगा y माइनस 6 प्लस में 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 माइनस में 2 इंटू दिस इंटू 3 कितना हो जाएगा माइनस में 6 रूट y माइनस 6 प्लस में 2 से 2 6 जा मल्टीप्लाई कीजिए 6 से 6 इंटू y माइनस 6 का स्क्वायर रूट माइनस 6 3 जा 18 प्लस का 50, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया भाई माइनस 6 प्लस 9 तो कितना आ गया y प्लस 3 माइनस 6 रूट y माइनस 6 और ये प्लस का 6 रूट y माइनस 6 माइनस 18 प्लस का 50, तो ये कैंसिल हो गया भाई। अब यहाँ पे y, अब ये 3 प्लस 15 कितना 18 माइनस 18 कट गया, क्या बच गया दिस इज इक्वल टू y, तो क्या आ गया देयरफॉर फॉर y इज इक्वल टू y फॉर each y belongs to क्या है रेंज ऑफ f दैट इज y, इज इट क्लियर, तो क्या हो गया भाई now here we have proved that for gof is equal to int y, gof is int element, gof is ix, f है ना तो x for I means for each x belongs to क्या है n, x belongs to n and fog is equal to int y for each y belongs to y that is range of f। अब ये क्या हो गए therefore f and g are बाइजेक्शन फंक्शन हो गए and hence g is equal to f inverse means f जो g है वो क्या है इनवर्स फंक्शन ऑफ f है, तो इनवर्स फंक्शन ऑफ x तो क्या आ गया therefore gx is equal to क्या लिखेंगे gx is equal to
इनवर्स कितना y माइनस 6 माइनस 3/2 जी एक्स है, तो हम जनरल लिखेंगे जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस, या इसको y लिखना चाहो तो y भी लिख सकते हैं, कोई नहीं, जी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 6 माइनस 3/2 such that कितना है, जी किसको बिलोंग करेगा, y to n and where y is range of, ठीक है भाई। इसके लिए ऐसे इस तरह के प्रूव करने के लिए इसको 1 1 और 1 2 प्रूव करने के बजाय हम क्या करें, हम गोफ को और फोक को आइडेंटिटी फंक्शन प्रूव कर दें, तो उस केस में f और g दोनों क्या हो जाएंगे, बाइसेक्शन फंक्शन हो जाएंगे, और बाइसेक्शन फंक्शन हो जाएंगे तो फिर हम कह सकते हैं कि वो एक दूसरे के क्या है, इनवर्स। तो g इज इक्वल टू f इनवर्स, तो gy इज इक्वल टू y माइनस 6 माइनस 3/2, दिस इज द इनवर्स ऑफ f। इज इट क्लियर? Let's see the last question of this exercise 1.5. The question is 11th. Consider f from real r plus means positive real to minus 9 to infinity given by fx is equal to this one. Prove that f is invertible. Invertible है और f inverse y is equal to this one. We have to prove it. Okay, we have to prove that it is invertible and f inverse is this one. Solution is the function f such that real positive to minus 9 to infinity given by fx is equal to 5x square plus में 6x minus 9। ये बिल्कुल सेम लास्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था उसी तरह से हम इसको प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे, अब हम ये f है, एक दूसरा हम फंक्शन g फाइंड आउट कर लेते हैं, और g फाइंड आउट करने के बाद में हम ये प्रूव कर देते हैं कि जो गोफ है, गोफ इज इक्वल टू ix और फोक इज इक्वल टू iy। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन है ये दोनों, f x से लेते हैं तो ये कितना, ये x आइडेंटिटी फंक्शन, कोई एलिमेंट इसमें से लेते हैं r पॉजिटिव में से, वो r पॉजिटिव आएगा वही, और फोक में g में से लेते हैं तो g मींस इसका इनवर्स, इसके इनवर्स में से लेते हैं, इसमें से लेते हैं, तो हम जो भी एलिमेंट लेंगे वही आ जाएगा। ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये आइडेंटिटी है तो क्या कहेंगे, f and g आर बोथ बाइसेक्शन फंक्शन और एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्स होंगे, और ये इनवर्स ये उसका इनवर्स होगा। हमें ये प्रूव करना बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह। ठीक है, नाउ लेट y बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट फ्रॉम -9 to, इसमें से है, such that therefore fx is equal to 5x square plus में 6x minus 9, this is equal to y. Now we will find the value of x, in terms of y, तो अपना फंक्शन g आ जाएगा। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इस तरफ स्क्वायर कंप्लीट करना है, इस तरफ क्या करना है, स्क्वायर कंप्लीट करना है। क्या करें, ये 5x स्क्वायर है, यहाँ 25 होता तो 5x का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, ये कितना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, दिस इंप्लाइज दैट दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 25x स्क्वायर 25, तो ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 का स्क्वायर और x पे 5x का स्क्वायर प्लस में 5 6 जा 30x माइनस 5 9 जा 45, that is equal to 5. Is it clear? अब स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, दिस इंप्लाइज दैट 5x का होल स्क्वायर प्लस में 36 को स्प्लिट करते हैं, कितना 2 into ये 5x
2 इंटू 2 5 जा 10, 10x, ये 30x और 3 से और मल्टीप्लाई, तो 30x को आपने ये स्प्लिट कर दिया, यानी कि फर्स्ट टर्म 5x, 3 सेकंड टर्म, तो प्लस में क्या करें 3 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर और माइनस का 45 इज इक्वल टू 5y। अब आपने इसमें 3 का स्क्वायर ऐड कर दिया, 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये माइनस 45 ऐसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करें, दिस इंप्लाइज दैट, अब ये क्या हो गया 5x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5x इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, ये क्या हो गया 5x प्लस में 3 का होल स्क्वायर, और ये क्या है -9 और -45 कितना आ गया -54, दैट इज इक्वल टू 5y। ये उधर जाके प्लस का होगा, दिस इंप्लाइज दैट 5x प्लस में 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उधर जाके प्लस का 54 प्लस में 5y। Taking square root on both sides, this implies that 5x plus 3 is equal to square root 54 plus में 5y। 3 को उधर ले जाए और फिर 5 डिवाइड हो जाएगा, this implies that दोनों स्टेप कंबाइन कर देता हूँ, x is equal to 54 plus में 5y और ये माइनस का 3 डिवाइड बाय 5, एक बार 3 उधर ले जाएंगे माइनस और ये 5x फिर 5 डिवाइड हो जाएगा, x is equal to this one। तो क्या कहेंगे, for every y from codomain there exists x, this one in domain, such that for y belongs to codomain there exists for every y from codomain there exists x that is equal to 54 plus में 5y plus square root minus 3 by 5 in domain। Therefore क्या कहेंगे, therefore you can say, what you can say, therefore इसको फंक्शन g मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम g मान लेते हैं from this to this, क्योंकि यहाँ पे -9 से बड़ा होगा, -9 पुट करते ही 9 5 जा 45 और ये कितना हो जाएगा 3 -3 0, ये हो जाएगा। तो इसमें देखिए फॉर एवरी y belongs to codomain there exists x, now therefore for every y in codomain there exists x, this one, therefore consider a function, g such that कहां से कहां तक from x to y, y to x function g such that from -9 to infinity to real positive given by fy is equal to root 54 plus में 5y minus 3 by 5। Is it clear? ये फंक्शन f है और ये फंक्शन g, सॉरी दिस इज g, ठीक है, ये फंक्शन g है। अब हमें क्या प्रूव करना है, हम अगर ये प्रूव कर देते हैं दोनों को तो हम क्या कह देंगे कि भाई f और g दोनों क्या है बाइसेक्शन फंक्शन है और एक दूसरे के क्या है इनवर्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, ठीक है, फाइंड गोफ x फंक्शन है ना, f किस पे है x पे, ठीक है। तो गोफ x तो क्या लिखेंगे g fx। what is fx, g, what is fx, fx is this one 5x square plus में 6x minus 9। अब g of this one, अब जहां भी g of this one तो gy is this one, जहां भी y है g of this one, जहां भी y है वहां पे इसको पुट कर देंगे। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया रूट 54 प्लस में 5 y है, y की जगह भी पुट कर दो 5x स्क्वायर प्लस में 6x माइनस 9 और ये माइनस का 3 बाय 5, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे वी विल गेट x। चलो देखते हैं, लेट्स सी 54 प्लस में 5 से 25x स्क्वायर 6 5 प्लस में 30x 5 9 जा माइनस 45
-45 और माइनस का 3/5 कितना हो गया भाई? 54 माइनस 45 क्या आ गया? +9 कितना हो गया? ये 5x स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, 5x स्क्वायर। 54 माइनस 45 कितना? प्लस का 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर। और ये प्लस का 30x को क्या लिख सकते हैं? प्लस में 2 इंटू 5x इंटू 3 और माइनस का 3/5 ये क्या हुआ? दिस इज इक्वल टू 5x प्लस में 3 का होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट -3/5। अब स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया भाई? 5x प्लस में 3 -3/5 कैंसिल हो गया, 5x बाय 5 से 5 कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू x। तो क्या आ गया? GOF therefore GOF is equal to IX for every x belongs to real positive। ठीक है, तो हम क्या प्रूव कर दें? अब अगर ये प्रूव कर दें fog is also एंटी एलिमेंट इन y कोडोमेन, तो फिर हम ये कह देंगे f और g दोनों एक दूसरे के इनवर्स। तो अब हम आते हैं फाइंड क्या? फाइंड fog y। तो कितना? f gy, तो व्हाट इज gy इज दिस वन, f कितना? रूट 54 प्लस में 5y माइनस 3/5। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे। fx में जहां भी x है वहां पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, दिस इज इक्वल टू जहां भी x है ये वैल्यू पुट कर देंगे, कितना? पहले 5x स्क्वायर इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कितना? 54 प्लस में 5y ये रूट -3 का होल स्क्वायर बाय नीचे 5 का भी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 माइनस में प्लस में 6 इंटू x, जो भी ये वैल्यू है यहाँ पे 6 इंटू x की जगह ये पुट कर देंगे, 6 इंटू रूट 54 प्लस में 5y माइनस 3/5 और ये माइनस का 9। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वी विल गेट दिस इक्वल टू fog y विल बी इक्वल टू y, fog y विल बी इक्वल टू y। ठीक है, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करते हैं हम, देखिए 5 से 5 नीचे क्या है? यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 ले लीजिए और ऊपर वालों को सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो दिस इज इक्वल टू यहीं पे आ गया, तो कितना हो गया? इसका स्क्वायर, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू दिस इंटू 3, तो कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू 54 प्लस में 5y स्क्वायर रूट का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 54 प्लस में 5y प्लस में 3 का स्क्वायर 9 माइनस में 2 इंटू दिस इंटू 3 माइनस 6 रूट 54 प्लस में 5y। ठीक है, 54 प्लस में 5y इसका स्क्वायर हो गया, और नीचे तो अपने एलसीएम 5 ले ही रखा है, तो प्लस में ये नीचे एलसीएम 5 है, तो 5 से 5 1 और ये u का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया? प्लस का 6 रूट 54 प्लस में 5y माइनस 6 3 जा 18 माइनस 1 से डिवाइड करेंगे 5 को, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, ये कैंसिल हो गया। 54 प्लस 9 63 माइनस 18 माइनस 45 माइनस 63 कैंसिल हो गया, क्या आ गया ऊपर? 5y बाय 5 से 5 कैंसिल, दिस इज इक्वल टू y। तो क्या कहेंगे? जो ये गोफ था, सॉरी fog था, fog y, therefore fog y is equal to y, ये y है, तो क्या लिखेंगे? therefore fog is equal to int y, where what is this? for each y belongs to -9 to infinity, clear है? therefore अब ये देखिए, गोफ इज आल्सो एंटी फंक्शन, fog इज आल्सो एंटी फंक्शन, तो क्या कहेंगे? therefore f and g आर दोनों क्या है? बाइसेक्शन फंक्शन है और इनवर्टिबल है एक दूसरे के, therefore f and
G, F and G are bisection function and invertible of each other. तो क्या लिखेंगे? Therefore F inverse is equal to G. F inverse is equal to G. तो क्या आ गया? F inverse Y is equal to GY. That is कितना है ये? F inverse Y is equal to GY कितना है? रूट 55 प्लस में 5Y माइनस 3/5. तो यही हमें प्रूव करना है. क्लियर है? जो लास्ट के 2 क्वेश्चन हमने किए हैं दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आप अच्छे से कर लेंगे. Is it clear? This was all about exercise 1.5. After this, there is only one exercise is left in this chapter, that is binary operations.